اور بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے کچھ بات کریں گے مشہور کتابوں کی۔ چلتا مسافر، دستک نہ دو، خواب کر اور نشان محفل جیسی شارع آفاق کتابوں کی مصنف، معروف ناول نگار، ادیب اور مترجم الطاف فاطمہ 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ ان کی نماز جنازہ بعد نماز عشاء حبیب اللہ روڈ پر ادا کی گئی۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ معروف ناول نگار اور مصنف الطاف فاطمہ 1929 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئیں۔ تقسیم ہند کے بعد وہ اپنے خاندان سمیت لاہور منتقل ہو گئیں۔ لیڈی میکلیگن کالج سے بی ایڈ اور پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ تکمیل تعلیم کے بعد اسلامیہ کالج برائے خواتین لاہور میں اردو کی استاد مقرر ہوئیں۔ اردو میں فن سوانح نگاری اور اس کا ارتقاء، سچ کہانیاں، بڑے آدمی اور ان کے نظریات، خواب گھر، چلتا مسافر، دستک نہ دو، نشان محفل، جب دیواریں گریا کرتی ہیں جیسی دیگر کتابیں ان کی اردو زبان سے خاص محبت اور لگن کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ الطاف فاطمہ کا پہلا افسانہ 1962 میں لاہور کے موقر ادبی جریدے ادب لطیف میں شائع ہوا تھا۔ الطاف فاطمہ نے ہمیشہ ناول اور افسانے اس قدر فن کی گہرائی میں ڈوب کر لکھے کہ بقول ان کے سکوت ڈھاکہ پر انہوں نے اپنا ناول چلتا مسافر 10 برس میں مکمل کیا تھا۔ ادیبہ الطاف فاطمہ کے انتقال پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا پیغام بھی سامنے آیا ہے۔ کہتے ہیں ادیبہ الطاف فاطمہ کے انتقال سے پیدا ہونے والا خلا پر نہیں ہو سکتا۔ الطاف فاطمہ مرحومہ نے ناول نگاری میں اپنا الگ مقام بنایا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اقبالیات کے حوالے سے بھی مرحومہ نے بہت کام کیا۔ مرحومہ کی ادبی خدمات کو تا دیر یاد رکھا جائے گا۔ یہ کہا گیا ہے سردار عثمان بزدار کی جانب سے ادیبہ الطاف فاطمہ کے انتقال سے پیدا ہونے والا خلا پر نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے یہ کہا ہے، جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ الطاف فاطمہ مرحومہ نے ناول نگاری میں اپنا الگ مقام بنایا۔ اقبالیات کے حوالے سے بھی مرحومہ نے بہت کام کیا ہے۔ مرحومہ کی ادبی خدمات کو تا دیر یاد رکھا جائے گا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بھی پیغام سامنے آیا ہے۔ ادیبہ الطاف فاطمہ کے انتقال سے پیدا ہونے والا خلا پر نہیں ہو سکتا، جبکہ عثمان بزدار نے اس موقع پر مزید یہ بھی کہا کہ الطاف فاطمہ مرحومہ نے ناول نگاری میں اپنا الگ مقام بنایا۔ اقبالیات کے حوالے سے بھی مرحومہ نے بہت کام کیا۔ مرحومہ کی ادبی خدمات کو تا دیر یاد رکھا جائے گا، سردار عثمان بزدار نے ایسا کہا ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں گے ہائی کورٹ پہ صاف پانی تحفظ کیس کی سماعت کے حوالے سے عدالت کا سروس سٹیشنز کو آٹومیٹک سسٹم پر منتقل کرنے کے لیے مزید مہلت دینے سے انکار کر دیا گیا، جبکہ تمام سروس سٹیشنز کو بند کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں صاف پانی کے تحفظ کے حوالے سے اہم کیس کی سماعت ہوئی۔ ایک اہم فیصلہ سامنے آیا کہ شہر لاہور کے وہ تمام سروس سٹیشنز جو تاحال آٹومیٹک سسٹم پر منتقل نہیں ہوئے انہیں بند کر دیا جائے۔ ہائی کورٹ کی جانب سے تمام سروس اسٹیشن مالکان کو 2 ماہ کی مہلت دی گئی تھی کہ وہ اپنے سروس سٹیشنز کو آٹومیٹک سسٹم پر منتقل کر لیں۔ ہائی کورٹ نے موقف اختیار کیا کہ سروس سٹیشن مالکان کو مزید مہلت نہیں دی جائے گی، جبکہ اسی کیس کے حوالے سے چیف سیکرٹری پنجاب کو بھی 1 دسمبر کو طلب کر لیا گیا۔ ضلعی حکومت کی وکیل کی جانب سے مہلت کو 3 ماہ تک بڑھانے کی استدعا کی گئی تھی۔ جی بلاک ماڈل ٹاؤن کے قبرستانوں میں قائم احاطوں کو مسمار کرنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے عدالت نے حکم دیا کہ دوبارہ احاطے قائم کرنے والوں کے خلاف مقدمات کا اندراج کیا جائے۔ اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن مظہر علی سرور کا سٹی 42 سے گفتگو میں کہنا تھا کہ قبرستان کے معاملات اسلامک کمیٹی ماڈل ٹاؤن کی انتظامیہ دیکھتی ہے، جبکہ اس کی ملکیت ماڈل ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی کے پاس ہے۔ قبرستان میں قائم احاطوں اور دیگر تعمیرات کی تعداد کا تعین کرنے کے بعد منگل کے روز ہونے والی اگلی سماعت کے موقع پر عدالت میں تفصیلی رپورٹ جمع کروا دی جائے گی۔ اس کے بعد عدالت جو احکامات دے گی اس پر ہر صورت عمل درآمد کیا جائے گا۔ دوسری جانب شہر کے پوش علاقے گلبرگ 2 کی بات کریں گے۔ شہر کے پوش علاقے گلبرگ 2 کے علاقے جنا پارک میں گیس پائپ لائن سے گیس کے بجائے پانی آنے لگا ہے، جس کی وجہ سے گیس کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں شاہد سپرا کی یہ رپورٹ۔ جنا پارک گلبرگ 2 کے علاقے میں زیر زمین پائپ لائنز میں پانی بھرنے کی وجہ سے گیس کی فراہمی معطل ہو گئی، جس پر شہری سراپا احتجاج کر گئے۔ گیس فراہمی معطل ہونے پر شہری LPG سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ علاقہ غریبوں کی بستی ہے، جس کی وجہ سے مسئلہ حل نہیں کیا جا رہا۔ ہر گھر میں 2-2 3-3 سلنڈر ہیں، چلتے پھرتے بم ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ خدایا سوئی گیس والا تو التجا ہے، ایم ڈی جو سوئی گیس ان پہ التجا ہے۔ خدایا یہ جناب پارک یہاں پہ لوگ ہی رہتے ہیں، یہاں کا کچھ کریں۔ اگر ہم کمپلین کرتے تو کوئی سنائی نہیں دی جا رہی۔ 4 دن سے اس محلے میں یہ ٹوئے مار رہے ہیں، کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ۔ 12 بجے آتے ہیں اور 3 بجے چلے جاتے ہیں۔
गैस की अदम फराहमी पर शहरियों ने सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिसमें खवातीन भी शरीक हुई। हम लोगों को इतनी मुश्किल है, पूरे एरिया में प्रॉब्लम है। बराए मेहरबानी मेरी इल्तमास है कि खुदा के वास्ते कम से कम ये जो कंप्रेसर लोग चला रहे हैं, एक तो इन पे छापे मारे जाएं और दूसरा हमारे एरिया में गैस का खास इंतजाम किया जाए। पानी आ रहा थे वो भी कुछ स्वाद दा नहीं है, पानी गंदा जिहा है पानी ते तुसी ना बड़ी मेहरबानी करके। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद पाइपलाइन से पानी नहीं निकाला गया, जबकि सुई नॉर्दर्न की टीमों ने खुदाई करके काम अधूरा छोड़ दिया है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। लाहौरिये होशियार खबरदार, कल से मोटरसाइकिल सवार दोनों अफराद के लिए हेलमेट पहनना लाजमी करार दे दिया गया। इब्तदाई तौर पर मॉल रोड से पाबंदी का इतलाक किया जाएगा। बगैर हेलमेट, साइड मिरर्स मोटरसाइकिल सवार को माल रोड पर नहीं आने दिया जाएगा। अदालती हुक्म पर बगैर हेलमेट सेकंड सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जबकि अदालती हुक्म पर साइड मिरर्स ना लगाने वालों के खिलाफ सख्त क्रैक डाउन किया जाएगा। अदालती हुक्म पर लेन लाइन, स्टॉप लाइन पर भी पाबंदी करवाई जाएगी, जबकि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी से हादसात से बचा जा सकता है। हाई कोर्ट की जानिब से ऐसा कहा गया है, जबकि अदालत ने तमाम महकमों के सरबराहान को ट्रैफिक कवानीन पासदारी करवाने का हुक्म भी जारी कर दिया है। एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे, कल से मोटरसाइकिल सवार दोनों अफराद के लिए हेलमेट पहनना लाजमी करार हो गया है। मर्द हो या खवातीन, बच्चे हो या बूढ़े, सब पहनेंगे हेलमेट। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं लोडर रिक्शा मालिकान को नई दिक्कत का सामना करना पड़ गया। रूट परमिट और रजिस्ट्रेशन नंबर ना मिलने के बायस लोडर रिक्शा मालिकान के लिए रोजी रोटी कमाना दुश्वार हो गया। लोडर रिक्शा मालिकान ने रूट परमिट और रजिस्ट्रेशन नंबर देने का मुतालबा किया है। देखते हैं शहजाद खान अब्दाली की ये रिपोर्ट। सैकड़ों अफराद इस लोडर रिक्शा के जरिए रोजगार कमाते हैं। पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी अथॉरिटी और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ पाकिस्तान की जानब से मंजूर शुदा होने के बावजूद इस ऑटो रिक्शा को रूट परमिट और रजिस्ट्रेशन के हसूल में मुश्किलात का सामना है। रूट परमिट और रजिस्ट्रेशन नंबर न मिलने के बायस लोडर रिक्शा मालकान मुश्किल में आ गए, जिनका कहना है कि रजिस्ट्रेशन नंबर मिलना बंद हो गए हैं और उनकी मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। रूट परमिट जो है ना ये चाहिए, क्योंकि जब भी बाहर निकलते हैं कभी 300 का कभी 400 का चालान करते हैं और हमें नंबर भी चाहिए, इसकी वजह से बहुत परेशानी है। लोडर रिक्शा के जरिए रोजगार कमाने वाले अफराद कहते हैं कि पिकअप की कीमत 8 लाख से जायद है, जिसे खरीदने की सकत नहीं रखते, इसलिए वो 2 लाख रुपए मालियत का लोडर रिक्शा खरीद कर रोजी रोटी कमा रहे हैं। जब भी बाहर निकालते हैं वो चालान कर देते हैं, जहाँ आदमी को अंदर कर देते हैं, जाओ जी जमानत कराओ, आदमी को छुड़ाओ। जब ये रूट पे आते हैं तो इनका चालान हो जाता है 400, 500, 1000 रुपये तक, गाड़ी बंद हो जाती है, परेशान रहते हैं हर टाइम। कई दफ़ा हम हुकूमत से ये मुतालबा कर चुके हैं कि इनको रूट परमिट दिया जाए, लेकिन इसमें कोई हाथर हुआ उन्होंने कामयाबी नहीं दी हमें। लोडर रिक्शा के जरिए रोजगार कमाने वाले अफराद ने पंजाब और वफाकी हुकूमत से रूट परमिट और रजिस्ट्रेशन नंबर के इजरा का अमल दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन एहसन जवेद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। उधर तस्बीह खाना में 3 रोज़ा अबकरी रूहानी इज्तिमा का आगाज हो गया। इज्तिमा में मुल्क भर से आए अकीदतमंदों की कसीर तादाद में शिरकत हुई। पहले रोज एडिटर अबकरी हकीम तारिक महमूद चुगताई ने पुरसोज दर्ज दिया। तफसीलात हसन खालिद की रिपोर्ट में। मजंग चुंगी पर वाक़े तस्बीह खाने में 3 रोज़ा अबकरी रूहानी इज्तिमा का आगाज हो गया, जिसमें मुल्क भर से खवातीन, बच्चों और मर्दों ने शिरकत की। 3 रोज़ा रूहानी इज्तिमा में मुख्तलिफ दरसी नशिस्तें होंगी। पहले रोज बाद अज़ नमाज मगरिब पहली नशिस्त का एहतमाम हुआ, जिसमें एडिटर अबकरी शेखुल वज़ाइफ हजरत हकीम मोहम्मद तारिक महमूद चुगताई ने पुरसोज रूहानी दर्स दिया। हजरत मुजद्दिद रफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने जेब से मिसवाक निकाल के ऐसे जमीन पे मारा, जमीन रुक गई। कहा तेरी सारी करामतों का इंतहा और मेरे आका मदीने वाले की सुन्नत की इब्तिदा। मेरे मदीने वाले की देखी नहीं अगर किसी ने शान मुस्तफा, देखे कि जिब्राइल है दरबान मुस्तफा। इस्लाम का जमाने में सिक्का बिठा दिया, अपनी मिसाल आप हैं यारान मुस्तफा। हकीम तारिक महमूद चुगताई ने शब जुमा के साथ साथ मसवाक की अहमियत और खुसूसियात पर तवील दर्स दिया। 2 चीजें ऐसी हैं जिनमें जरासीम, एक मिसवाक है जो जरासीम को जज्ब करके खुद जाहिर करता रहता है, खुद खत्म करता रहता है, मिसवाक। और एक मिट्टी का बर्तन, ये सारे के सारे बैक्टीरिया और जरासीम को खुद खाता रहता है, वरना वो जरासीम हमें खा जाते हैं, ये खा जाता है।
अजीब कायनात है इस वक्त। हकीम तारिक महमूद चुगताई के खुसूसी बयान के बाद जिक्र मराकबा और दुआ हुई। सदा दुनिया में भी खैरें और सदा आखिरत में भी खैरें अता फरमा, हमें दुनिया और आखिरत की बरकतें अता फरमा, हमें दुनिया आखिरत की बरकतें अता फरमा, हमारे उठे हुए हाथों को कबूल कर ले, खाली ना भेज मंजूर कर ले। 3 रोज़ा इज्तिमा में शुरका के लिए बाम क़याम का माकूल इंतजाम किया गया, जबकि हकीम तारिक महमूद ने मेहमानों से बारी बारी के हमरा हसन खालिद, सिटी 42। माह रबीउल अव्वल की मुनासिबत से रहीम स्टोर पर इस्लामी कुरानदाजी और शहरियों को इनामात से नवाजने का सिलसिला जारी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। दर रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी की ख्वाहिश रखने वालों के लिए रहीम स्टोर की जानिब से पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी कुरानदाजी का सिलसिला जारी है। माह रबीउल अव्वल के आगाज में उम्रा पैकेज के लिए शुरू होने वाली कुरानदाजी को आज 21 रोज हो चुके हैं, जबकि अबजिया कुरानदाजी उम्रा पैकेज हासिल करने वालों की तादाद 72 हो चुकी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी कुरानदाजी के 21वें रोज भी उम्रा पैकेज के लिए 3 खुश नसीबों का कुरान निकाला गया। PP 151 के सदर चौधरी मोहम्मद अशरफ ने कुरानदाजी स्टोर से सिर्फ 3000 की खरीदारी करने वाले कस्टमर्स कुरानदाजी में शामिल होकर उम्रे का टिकट हासिल कर सकते हैं। उम्रा पैकेज हासिल करने वाले खुश नसीबों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उम्मीद नहीं थी कि अल्लाह के घर और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मौका मिलेगा। रहीम स्टोर से खरीदारी की और कुरानदाजी में नाम निकल आया। हर इंसान की एक ख्वाहिश है जो कि रहीम स्टोर ने पूरी की है। अल्लाह इन्हें दिन रात तरक्की दे और इसी तरह सभी चाहने वालों को मौका मिलता रहे और सब लोगों को हाजिरी का शरफ मिलता रहे। मेरा हाथ पूरा किया आपने फैमिली के साथ इंशाल्लाह लॉन्ग हॉलीडे में मैं उम्रा करने गया। उम्रा पैकेज मिलने पर शहरियों ने रहीम स्टोर इंतजामिया को भी ढेरों दुआओं से नवाज दिया। हमारा एक टिकट निकला है ना, हम फैमिली वाले दूसरे भी 2 जा रहे हैं ताकि इकट्ठे उम्रा कर सके। और रहीम स्टोर इंतजामिया की जानिब से खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों में क्विज के जरिए तोहफे भी तकसीम किए गए। कैमरामैन कदीर खान के हमरा जुबैर अमान, सिटी 42। लाहौर सियाहती बस सर्विस के 3 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद किया गया और इस मौका पर केक भी काटा गया। सालगिरह के मौके पर निजी स्कूल और खुसूसी अफराद को लाहौर की सैर भी कराई गई। सादिया खान की रिपोर्ट देखिए। सियाहती बस ने कामयाबी से 3 साल मुकम्मल कर लिए। बस सर्विस की 3वीं सालगिरह की पुरवकार तकरीब में केक भी काटा गया। खुसूसी अफराद की शिरकत ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए, जिन्हें शहर की सैर भी कराई गई। विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड हम 3री सालगिरह मना रहे हैं। ये टूरिज्म की सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है और इसका लाहौर में आना और लाहौर की रौनक को दुबाला करने में बड़ा किरदार है। तकरीब में शरीक माजूर अफराद का कहना था कि इन्हें बहुत मजा आया, खासकर सैर पर जाते वक्त इनकी खुशी दीपनी थी। ये एक अच्छी उन्होंने एफर्ट की है कि सब व्हीलचेयर यूज़र्स के लिए ये सारा अरेंज किया है ताकि वो इसके ऊपर बैठ के तो सिटी को हाइट से देख सकें। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है और ख़ास आज जो सालगिरह मनाई जा रही है और हम लोगों को उन्होंने इनवाइट किया है तो इससे दिल को बहुत खुशी हुई है। और भी काफ़ी डिसेबल पर्सन आए हुए हैं। इतनी गैदरिंग हुई है स्पेशल पर्सन्स की, तो उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग जो अपने घरों से निकलेंगे और ये साबित करेंगे कि यस वी कैन डू। 3 सालों में 3 लाख लोगों ने इस बस पर सैर की, जिनमें 15% बैरूनी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले थे, जबकि बस सर्विस ने 3 सालों में 4967 टूर्स मुकम्मल किए। कैमरामैन वसीम निसार के साथ सादिया खान, सिटी 42। जिलानी पार्क में PHA के ज़ेरे एहतमाम गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश 2018 का दूसरा रोज जारी है। सहर अंगेज नुमाइश में कोई टहलकर महसूस हुआ तो कोई सेल्फियां बनाकर दिल बहलाता रहा। देखते हैं राउल दिलशाद हुसैन की इस रिपोर्ट में। फरेब रंगों के खुले हजारों फूलों के ये मनाजिर PHA के ज़ेरे एहतमाम लगाई गई गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश 2018 की हैं, जिन्हें देखने के लिए शहरियों ने खासी दिलचस्पी का इजहार किया। गुले दाऊदी की नुमाइश में 250 से ज़ायद इकसाम के फूल शहरियों की तफरीह को मलहूज़े खातिर रखते हुए रखे गए हैं। मुख्तलिफ कंपनियों ने भी इस नुमाइश में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और भरपूर मुकाबले की फिजा तश्कील दी है। PHA के ज़ेरे एहतमाम गुले दाऊदी की नुमाइश 5 दिसंबर तक जारी रहेगी। कैमरामैन सजाद अहमद के हमरा राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे इनकम टैक्स गोशवारों की। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आज आखिरी तारीख है। FBR को मुल्क भर से 10 लाख इनकम टैक्स गोशवारे जमा हो चुके हैं। गोशवारे जमा ना करवाने वाले 50 लाख की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर्स 200 CC से बड़ी गाड़ी भी नहीं खरीद सकेंगे, जबकि फाइलर्स को नॉन फाइलर्स की निस्बत आधा विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। ये हिदायत की गई है FBR की जानिब से, जबकि फाइलर्स के लिए किसी भी मालियत की जायदाद खरीदने पर कोई भी पाबंदी आयद नहीं की जाएगी, ये भी बताया जा रहा है FBR ज़राए की जानिब से। आपको बताते चले कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आज आखिरी तारीख है।
MCL के रिटायर्ड मुलाजिम को पेंशन न देने के खिलाफ केस की समाअत और अदालत का लॉर्ड में मुबशिर जावेद को आज जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया गया है। जस्टिस शाहिद वहीद ने मजीद मसीह की दरख्वास्त पर हुक्म दिया। MCL में बतौर क्लास 4 के मुलाजिम की हैसियत से रिटायर्ड हुआ हूँ, मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है दरख्वास्त गुजार की जानिब से, जबकि रिटायर्ड होने के बाद ताहाल पेंशन बकायाजात अदा नहीं किए जा रहे। अदालत पेंशन और बकायाजात की अदायगी का हुक्म दे। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये इस्तदा भी की गई है। MCL के रिटायर्ड मुलाजिम को पेंशन ना देने के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने लॉर्ड मेयर मुबशिर जावेद को आज जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने मजीद मसीह की दरख्वास्त पर हुक्म दिया। MCL में बतौर क्लास 4 के मुलाजिम की हैसियत से रिटायर्ड हुआ हूँ, जबकि रिटायर्ड होने के बाद ताहाल पेंशन और बकायाजात अदा नहीं किए जा रहे हैं। अदालत पेंशन और बकायाजात की अदायगी का हुक्म दे। दरख्वास्त गुजार की जानिब से यह इस्तदा भी की गई है। आगे बढ़ेंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का 23वां हाउस इजलास में हस्बे रिवायत हंगामा आराई की नजर हो गया। ऑपोजिशन और लीगी अरकान एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। शोर शराबे में 21 करारदादें मंजूर हुई हैं। अहवाल बता रहे हैं राव दिलशाद हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। टाउन हॉल में स्पीकर डेप्यूटी मेयर राव शहाबुद्दीन की ज़ेर सदारत मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का हाउस इजलास शुरू हुआ तो एजेंडे में 18 करारदादें शामिल थीं, जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स के बाद 21 हो गईं। ताहम पैदाइश सर्टिफिकेट की मुद्दत 5 साल से बढ़ाकर 20 साल और मौत के सर्टिफिकेट की 60 रोज से बढ़ाकर 5 साल करने की करारदाद भी मंजूर कर ली गई। डेप्यूटी मेयर हाजी अल्लाह रखा, चेयरमैन यूनियन काउंसिल 93 मलिक ज़शान, डिस्ट्रिक्ट मेंबर चौधरी रियाज एडवोकेट और दीगर ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर मजम्मती करारदाद में मुतालबा किया कि शहबाज शरीफ ने बीमारी के बावजूद दिन रात सूबे के अवाम की खिदमत की, लेकिन अखियार के एजेंडे की तकमील के लिए शहबाज शरीफ को अक़ूबत खाने में बंद किया गया। ईवान उस वक्त मछली मंडी बन गया जब चौधरी रमजान गुज्जर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया तो अपोजिशन अरकान भी पीछे न रहे, जबकि लीगी चेयरमैन लालदीन और अजमत चौधरी के माबैन तल्ख कलामी हाथापाई तक पहुँच गई। तहम अपोजिशन लीडर अफीफ सिद्दीकी और दीगर की मुदाखलत पर बीच बचाव हुआ। इजलास में पॉलीथिन बैग्स की तैयारी और इस्तेमाल पर पाबंदी, सड़कों से आईकैड्स के खात्मे और MAO कॉलेज चौक को सिग्नल फ्री बनाने की करारदादों को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के 23वें इजलास में भी अवामी फलाह बहबूद को पसे पुश्त डालकर कायदीन का दिफा करने का सिलसिला जारी रहा। कैमरामैन सज्जाद अहमद और नदीम अहमद के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। इजलास की कहानी तो वही पुरानी है, लेकिन अभी कुछ बात करेंगे अस्पतालों की हालत इज़ार की। तो टीचिंग अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की इंतहाई कमी का सामना है और गुज़श्ता बरस 300 वेंटिलेटर्स खरीदने का मंसूबा बनाया गया। महकमा खजाना ने खरीदारी के लिए 70 करोड़ भी दे दिए, खरीदारी फिर भी ताखिर का शिकार हो गई। वेंटिलेटर्स की कमी से टीचिंग अस्पतालों में शदीद अलील मरीजों की जान को खतरा लाहक है। टीचिंग अस्पतालों में शदीद अलालत से 2-4 मरीजों को मसनूई तनफ़ुस फराहम करने के लिए वेंटिलेटर्स की शदीद कमी का सामना है। गुज़श्ता बरस महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने टीचिंग अस्पतालों के ICUs के लिए 300 वेंटिलेटर्स, कार्डियक मॉनिटर्स और प्लस ऑक्सीमीटर्स खरीदने का मंसूबा बनाया और इस हवाले से फर्मों की प्री क्वालिफिकेशन का अमल भी मुकम्मल कर लिया है। ताहम रवा माली साल में वेंटिलेटर्स की खरीदारी का मंसूबा इल्तवा से 2-4 हो गया है। दूसरी जानिब कुछ तालीम की बात करेंगे। हुकूमत पंजाब ने लाहौर शहर समेत सूबे भर में 2800 नए ग्रेड 17 के लेक्चरार भर्ती करने का फैसला किया है। महकमा हायर एजुकेशन ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को एक रिक्वेजिशन अरसाल की है। पंजाब के कॉलेजों में तमाम लेक्चरार की खाली आसामियों को पुर करने के लिए फौरी तौर पर 2800 कॉलेज लेक्चरार भर्ती किए जाएं। ये कॉलेज लेक्चरार तमाम मज़ामीन के हैं और इस नई भर्ती से लाहौर शहर समेत सूबे के तमाम कॉलेजेस में लेक्चरार की तमाम खाली आसामियां पुर हो सकेंगी। एक तरफ तब्दीली सरकार के तालीम दोस्त दावे तो दूसरी जानिब लाहौर के 73 स्कूल्स में फर्नीचर सिरे से मौजूद ही नहीं। तलबा पसमानदा इलाकों के स्कूलों की तर्ज पर टाटों पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। सूबा पंजाब में तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से पहले नंबर पर आने वाला शहर लाहौर तालीमी मयार में देही इलाकों से भी पीछे रह गया। शहर के 73 स्कूलों में सिरे से ही फर्नीचर मौजूद न होने का इंकशाफ हुआ है। तलबा टाटों पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर है। महकमा तालीम के हुक्काम का कहना है कि वज़ीर तालीम मुराद रास को भी सूरत हाल से तफसीली तौर पर आगाह कर चुके हैं, मगर फर्नीचर की खरीदारी के लिए ताहाल फंड्स नहीं मिल सके। पंजाब में इख्तियारात के मुताबिक मनपसंद और इजाफी गाड़ियां रखने का रिवाज खत्म करने का भी फैसला किया गया है। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में वुज़रा और सरकारी अफसरान को सरकारी गाड़ियां देने की पॉलिसी तैयार कर ली है।
हुकूमती ज़राए के मुताबिक अब वुज़रा, सेक्रेटरीज और आला सरकारी अफसरान लग्जरी गाड़ियां नहीं रख सकेंगे। हुकूमत ने वुज़रा और सेक्रेटरीज को 1600 जबकि ग्रेड 20 तक के अफसरान और जिले अफसरान को 1300 सीसी गाड़ी देने की पॉलिसी बना ली है। ज़राए का कहना है कि मनपसंद और 1600 सीसी से जायद हॉर्स पावर की गाड़ियां वापस लेकर हाईवे पेट्रोलिंग के लिए दिए जाने पर गौर किया जा रहा है। हुकूमत पंजाब ने गाड़ियों के माहाना सरकारी पेट्रोल अखराजात में कमी लाने के लिए भी कमेटी बनाई है। ज़राए का कहना है कि वुज़रा और सेक्रेटरी को 1000 लीटर माहाना पेट्रोल दिया जाता है, जिसमें कमी करके 500 लीटर माहाना तक लाने की कोशिश की जाएगी। उधर बाबा गुरु नानक के 549वें जन्मदिन की मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद सिख यात्री कुछ ही देर में रवाना होंगे। 3000 से जायद सिख यात्री लाहौर रेलवे स्टेशन से बजरिया ट्रेन रवाना होंगे। आपको बता रहे हैं बाबू गुरु नानक के जन्मदिन की मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद सिख यात्री कुछ देर में ही रवाना हो जाएंगे, जबकि 3000 से जायद सिख यात्री लाहौर रेलवे स्टेशन से बजरिया ट्रेन रवाना होंगे। मजीद इंसाफ की सिख यात्रियों के इंतजामात के हवाले से क्या कहना है, जानते हैं रेलवे स्टेशन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे नदीम खालिद से। जी नदीम खालिद, बताएगा। जी बिल्कुल, सिख यात्री जो है यहाँ इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन से रवाना हो रहे हैं और यहाँ से वाघा बॉर्डर जाएंगे और वहाँ से अपने मकामी जो भी इलाके हैं वहाँ पहुँचेंगे। यहाँ गुरु नानक का जन्म स्थान के लिए आए थे, 549वें जन्म स्थान के लिए इस वक्त यहाँ से रवाना हो रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये कैसा तजर्बा रहा। अच्छा सरदार जी दसो किहो जा तजर्बा रहा, इंतजामात कैसे सन? देखिए, मैंने किसी की खुशामद तो करनी नहीं है, तो मैंने मतलब कि जो महसूस किया है, ये केवल मैंने नहीं किया, जितने भी श्रद्धालु आए हैं उन्होंने भी इस चीज़ को महसूस किया है कि जो इंतज़ामिया है उनको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। हम तो अपने गुरु साहबानों के तीर्थ स्थानों के दर्शन करने आते हैं, इसलिए हम लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं जैसे भी हमको रखा जाए। पर वक्फ बोर्ड के जो मुलाजम हैं और जो पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के जो प्रधान जी और उनके जो मुलाजम हैं, उनको सबको जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके रहने के लिए बहुत माकूल प्रबंध करना पड़ेगा। स्काई इज़ द लिमिट। अभी मतलब कि इस बार जो हुआ है वो मैं समझता हूँ, मैं पहले भी 2 मरतबा आ चुका हूँ, पर इस बार का जो प्रबंध था वो नाकश था। ठीक, अब रेलवे का बेनती है भी रेलवे वाले ने साढ़े नाल वो जाने कमोडेंट का लाभ से सिख यात्रियों को बहुत लड़ाया है। पूरी रिजर्वेशन ही की, रिजर्वेशन की है, उस डब्बे होर यात्री बाढ़ दिते, वो आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे, जाके जिन्ने यात्री इन्होंने पता ऑनलाइन सारे वीजे हो गए ने, तो उन्हें डब्बिया ने इंतजाम क्यों नहीं किया इन्ना, समझी गल कि नहीं? पर एक एक नाल भी साढ़े यात्रु पूरे नहीं आए। किसी को बसा से लिया ने, किसी को किमें लिया ने, किसी यात्रु का पिछला एक सज्जन पिछा रह गया, दूजे का अगां चला गया। उन्हें जोड़े आते ने 60 साल तो उपर वाले, परेशानी उन्होंने आती, यंग ब्लड तो साढ़े आते ही नहीं गए, तो आते 60 साल उपर वाले, तो 60 साल उपर आने लगा, इन्होंने परेशानी ज़्यादा आती है। इस करके साड़ी तो बेनती है सारे थोड़े निजाम रेलवे भी इनका जरूर बदलना। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना कि एक तरफ इंतज़ामात जो है उनका सरेनो जायज़ा लेने की ज़रूरत है। यहाँ सिख यात्री जो मौजूद थे उनका कहना था कि रहने का जो रहाइश का इंतज़ाम है वो भी, और उसके अलावा रेलवे की जो है बद इंतज़ामी की वजह से उन्हें यहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जिसमें मज़ीद। दूसरी जानब करतारपुर राहदारी की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत के बाद नवजोत सिंह सिद्धू वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान से भारत रवाना हो गए। तफसीलात शाहरुख नदीम की इस रिपोर्ट में। मोहब्बत, दोस्ती, भाईचारे की पहचान पाकिस्तान। करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत रवाना। नवजोत सिंह सिद्धू की दोनों ममालिक के माबैन अमन का रास्ता खुलने पर शेरो शायरी। असीं बरसात करिए, ओए लम्मी काली रात है, आओ प्रभात करिए, खत्म करिए दुश्मनी दी दास्तानू, बाबे नानक दे नाम ते एक चंगी शुरुआत करी। मीडिया से गुफ्तगू में नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि इमरान खान की नेक नियति और भारतीय हुकूमत की वजह से करतारपुर बॉर्डर खोला गया। इमरान खान और भारत सरकार ने इस काम से पारस को छू लिया। साहब ने और भारतीय सरकार ने एक पारस नू छो लिया, ते पारस जिथे भी लगता मिट्टी सोना कर दिंदा, गौरव का संचार कर दिंदा। चीज मैली हो, धूमिल हो, उसे उज्जवल कर देता है, और जिसका मोल ना हो उसे अनमोल बना देता है। ये कॉरिडोर अपने आप में
लोगों से संपर्क बनाएगा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बनाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने मजीद कहा कि करतारपुर का रास्ता दोनों ममालिक के लिए हजारों रास्ते खोलेगा। है और पाक है कि अपने नाल ही 1000 दरवाजे होर खोलेगा ते 1000 खिड़कियां भी नाल खोलेगा। It will open up floodgates to prosperity. तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गुल ने भी सिद्धू का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में बॉर्डर बंद हो रहे हैं जबकि इमरान खान अमन के लिए बॉर्डर खोल रहे हैं। कैमरामैन एडी मलिक के साथ शाहरुख नदीम, सिटी 42। लाहौर के इलाके धर्मपुरा में चौबच्चा फाटक के नाम से मशहूर जगह असल में एक कदीम गुरुद्वारा था जिसके आसार अब भी देखे जा सकते हैं। मजीद जानने के लिए देखते हैं रजा करल की रिपोर्ट। चौबच्चा फाटक से मुल्हिका इलाके में जाएं तो तंगो तारीख गलियों में से गुजरते हुए कदीम इमारतों के आसार भी दिखाई देते हैं। ये इमारतें उसी गुरुद्वारे का हिस्सा हैं जिसकी तामीर का आगाज शाहजहां के दौर में हुआ। गुरुद्वारे के दाखिली दरवाजे के आसार आज भी मौजूद हैं, मगर कहा जाता है कि ये बाग के अद्वार की तामीर है। गुरुद्वारे का रकबा कमोबेश 10 एकड़ है। गुरुद्वारा चौबच्चा साहब के नाम से मशहूर है, जिसे बनाने वाले सिख मजहब के 7वें गुरु हर राय जी के बड़े बेटे राम राय थे, जो कि बाबा राम राय के नाम से या गुरु राम राय के नाम से जाने जाते हैं। गुरुद्वारे में बारीक ईंट का इस्तेमाल वाफर दिखाई देता है, मगर बहुत सा हिस्सा अब रिहायशी आबादी बन चुका है। राम राय के बनाए हुए चौबच्चा गुरुद्वारा का ये मरकजी इलाका है, इसे प्रकाश हाल कहते हैं। यहाँ पे सिख धर्म के मानने वाले इबादत किया करते थे। क़याम पाकिस्तान के बाद यहाँ पे मुहाजिरीन को मुकीम किया गया। चौबच्चा साहब गुरुद्वारे में एक तालाब भी था। एक तालाब हुआ करता था और एक बड़ी इबादत गाह थी। इसके अतराफ में बहुत बड़ी जगह थी और इसकी बाकायदा कोई शामलाट यानी कि कोई वक्फ इमारत या कोई ज़मीन इसके साथ नहीं थी। ये एक बाकायदा बहुत बड़ा एक मंसूबा था जो कि कई सालों में तामीर हुआ। जब हम आए हैं क़याम पाकिस्तान के बाद तो ये खाली पड़ा हुआ था, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे हमें कहा कि इधर रहाइश करें अपनी फ़िलहाल। उसके बाद फिर जब भट्टा दौर में आके इन्होंने अलाटमेंट की इसकी। लाहौर के इस तारीखी इलाके को अब असल हालत में बहाल करना मुश्किल है, मगर यहाँ कोई तख्ती लगाकर इसकी तारीखी अहमियत उजागर की जा सकती है। कैमरा टीम के हमरा रजा खरल, सिटी 42। अब कुछ एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। मारूफ भारतीय गुलकार रविंदर वीर सिंह ने अदाकारा मेघा के हमरा डुएट गाने बॉर्डर पार की वीडियो रिकॉर्ड करवा दी। रिकॉर्डिंग का अहवाल जानते हैं ज़ैन मदनी हुसैनी से। गुलकारा मेघा की दावत पर लाहौर आए भारतीय गुलकार वरिंदर वीर सिंह ने डुएट गाने बॉर्डर पार की वीडियो रिकॉर्डिंग अंदरून शहर समेत बादशाही मस्जिद के अकब में रिकॉर्ड करवाई। गाना बॉर्डर पार मेघा और वरिंदर ने मिलकर गाया है, जिसकी वीडियो तैयार की गई। मेघा का कहना है कि वो पाक भारत दोस्ती और अमन की ख्वाह है, इसलिए ये प्रोजेक्ट किया। बॉर्डर पार गाना जल्द ही वीडियो के साथ रिलीज किया जाएगा। ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। अभी कुछ बात करेंगे अदालती कार्रवाई की और आपको बताएंगे डीजी हेल्थ डॉक्टर मुनीर अहमद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर मुनीर अहमद को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया। जस्टिस शाहिद वहीद ने शहजाद अख्तर मुख्तार अली की दरख्वास्तों पर समाअत की है। एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे। डीजी हेल्थ डॉक्टर मुनीर अहमद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर मुनीर अहमद को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया है। जस्टिस शाहिद वहीद ने शहजाद अख्तर मुख्तार अली की दरख्वास्त पर समाअत की है। आगे बढ़ेंगे। नादरा के 21 असिस्टेंट डायरेक्टर्स को तरक्कियां ना देने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों को दाद रसी के लिए चेयरमैन नादरा को भिजवा दिया। दरख्वास्त गुजार को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करें, अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है। जबकि जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने गुलाम कादिर समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की है और दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नादरा ऑफिस में अरसा दराज से काम कर रही हैं। मजीद आपको बताते चले कि सीनियरिटी लिस्ट न होने की बिना पर तरक्कियों से महरूम है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये भी कहा गया है, जबकि सदा की गई है अदालत से कि अदालत सीनियरिटी लिस्ट बनाकर उनको तरक्कियां देने का हुक्म दे। आपको बता रहे हैं कि नादरा के 21 असिस्टेंट डायरेक्टर्स को तरक्कियां ना देने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत और हाईकोर्ट ने दरख्वास्तों को दादरसी के लिए चेयरमैन नादरा को भिजवा दिया। दरख्वास्त गुजार को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करें, अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया है।
जाली ऑर्डर बनाकर 4 अफराद को भर्ती करने का झांसा देकर लूटने का ये मामला है। मुल्जिमान अकील अहमद, अदनान हसन को 15-15 साल कैद जबकि 2-2 लाख जुर्माने की सजा सुना दी गई। स्पेशल जज एंटी करप्शन मंसूर अहमद खान ने दोनों मुल्जिमों को सजा सुनाई है। मुल्जिमान के खिलाफ एंटी करप्शन ने 2015 में मुकदमा दर्ज किया था। एंटी करप्शन की तरफ से डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर तनवीर अहमद पेश हुए। एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे। जाली ऑर्डर बनाकर 4 अफराद को भर्ती करने का झांसा देकर लूटने का ये मामला है। 2 मुल्जिमान अकील अहमद, अदनान हसन को 15-15 साल कैद जबकि 2-2 लाख जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों की मुमकिना बरतरफियां ताहुक्म सानी रोक दी है। हाईकोर्ट का एमडी वोकेशनल काउंसिल को नोटिस जारी जबकि 17 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया गया है और अदालत ने केस को मजीद समाअत के लिए जस्टिस अली बाकर नशवी को भिजवा दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने शुएब अली समेत दरख्वास्तों पर समाअत की है। वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए दरख्वास्तों पर समाअत हुई है और अदालत ने दरख्वास्त गुजारों की मुमकिना बरतरफियां ताहुक्म सानी रोक दी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के साबिक चेयरमैन आसिफ हाशमी को अदालत पेश कर दिया गया है। नैब ने आसिफ हाशमी के खिलाफ गैर कानूनी भर्ती का रेफरेंस पेश कर रखा है। आपको बताते चले कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के साबिक चेयरमैन है आसिफ हाशमी जिनको अदालत पेश कर दिया गया है और नैब ने आसिफ हाशमी के खिलाफ गैर कानूनी भर्ती का रेफरेंस पेश कर रखा है। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के साबिक चेयरमैन आसिफ हाशमी को एहतसाब अदालत पेश कर दिया गया है जबकि नैब ने आसिफ हाशमी के खिलाफ गैर कानूनी भर्ती का रेफरेंस पेश कर रखा है। एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे। चेयरमैन आसिफ हाशमी को अदालत पेश कर दिया गया है। नैब ने आसिफ हाशमी के खिलाफ गैर कानूनी भर्ती का रेफरेंस भी पेश कर रखा है। कसूर की 12 केनाल अराजी रिश्तेदारों को देने का केस। साबिक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कसूर आमिर अकीक की बरी करने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई जबकि सीनियर स्पेशल जज एंटी करप्शन बहादुर अली खान ने दरख्वास्त खारिज की है। मुल्जिम के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर तनवीर अहमद ने दलाइल दिए। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुल्जिम की दरख्वास्त खारिज की। एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे। कसूर की 12 केनाल अराजी रिश्तेदारों को देने का ये केस है। साबिक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कसूर आमिर अकीक की बरी करने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। सीनियर स्पेशल जज एंटी करप्शन बहादुर अली खान ने दरख्वास्त खारिज की है। मुल्जिम के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर तनवीर अहमद ने दलाइल दिए। कुछ बात करेंगे लाहौरी सकाफत की। हाथ से बने पाकिस्तानी कालीन दुनिया भर में पसंद भी किए जाते हैं लेकिन आज ये सनत जवाल का शिकार है और लाहौर में 450 कारखाने बंद होकर अब सिर्फ 15 से 20 रह गए। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान हाथ से कालीन बनाने वाला दूसरा मुल्क कहलाता था लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जही के बायस अब ये सनत दम तोड़ रही है। लाहौर के इलाके फ्लेमिंग रोड पर कालीनों की सबसे बड़ी मार्केट बनाई गई और इस जगह का नाम कारपेट स्ट्रीट रखा गया लेकिन आज इस जगह कालीनों की बजाय दीगर कारोबार शुरू हो चुके हैं। हाथ से कालीन बनाने वाले न सिर्फ मौजूदा हुकूमत बल्कि साबका हुक्मरानों से भी नाला हैं। उनका कहना है कि ये वो सनत है कि जो मुल्क की सबसे बड़ी घरेलू सनत थी लेकिन आज ये सनत खत्म हो चुकी है। कुछ गवर्नमेंट ने भी तवज्जो नहीं दी, कुछ इन बड़े लोगों ने भी इसके ऊपर पूरी तवज्जो नहीं दी जिस तरह देनी चाहिए थी। दूसरी तरफ लाहौर कारपेट एक्सपोर्टर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के रहनुमा ख्वाजा अजहर इफ्तिखार का कहना है कि कारपेट स्ट्रीट इसीलिए बनाई गई थी कि इस जगह हाथ से कालीन बनाने वाले कारीगर, वॉशर और एक्सपोर्टर्स एक जगह ही मौजूद हों लेकिन आज ये कारपेट स्ट्रीट बराए नाम ही रह गई है। चाइना की तरक्की का राज ही ये है कि उन्होंने अपने एक्सपोर्ट को, अपनी सनत को तो तवज्जो दी है। इस वक्त दुनिया की वो पहले नंबर पे उनकी एक्सपोर्ट और उनकी इंडस्ट्री है लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि गवर्नमेंट अदारों की वजह से या गवर्नमेंट ने हमें वो फैसिलिटेट नहीं किया तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान के हाथ से बने कालीनों की सनत की ज़वाल की बड़ी वजह आलमी सतह पर पजीराई ना होना है। एक वक्त था कि पाकिस्तान के हाथ से बने हुए कालीन दुनिया भर में मशहूर थे और ये सनत मुल्की मईशत में अपना अहम किरदार अदा कर रही थी लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस अब ये सनत दम तोड़ती नजर आती है। अगर हुकूमत इस सनत पर जरा सी तवज्जो दे तो ना सिर्फ ये सनत मुल्की मईशत को बेहतर कर सकती है बल्कि हजारों अफराद को रोजगार भी फराहम कर सकती है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 40। आगे बढ़ेंगे। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम सुपीरियर इंटरनेशनल वीक के तहत
अजरा नाहिद सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जानिब से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च का इनेकाद किया गया। देखते हैं सादिया खान की इस रिपोर्ट में। सुपीरियर इंटरनेशनल वीक के तहत 9वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च का इनेकाद मेन कैंपस रायवन में हुआ। कॉन्फ्रेंस में सदर युराज अकेडमी मुस्तफा एडन, सूबाई वजीर बराए आला तालीम राजा यासिर हमायूं, रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान, डायरेक्टर अजहर नहीर रिसर्च सेंटर डॉक्टर मुकद्दस रहमान, डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर रिसर्च के फरोग के लिए अजरा नहीर सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और तुर्की के मारूफ तालीमी अदारों के दरमियान मुफाहमती यादाश्त के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर शिरकत से खिताब करते हुए मुस्तफा आइडन का कहना था कि वो अपना 43 साल का तजर्बा सामने रखते हुए बताना चाहते हैं कि कामयाबी का राज अपनी कारकर्दगी का इस खुद जायजा लेना है। Ona en az 2-3 yıl emek veriyorsunuz istediğiniz hale getirmek için. So when you take an intern student, you're gonna pay all your time and energy for 2-3 years to him. Öğrenciyken buna başlayalım. 3 yıl 4 yıl kazanmış oluruz. And the student will get a skill in 3-4 years. सूबाई वजीर बराए आला तालीम राजा यासिर हमायूं ने कहा कि मुस्लिम दुनिया जदीद दुनिया में बहुत पीछे रह गई है। अब इस छूट जाने वाली ट्रेन को पकड़ने का वक्त आ गया है। Before Mustafa Kemal Pasha changed modern Turkey, our main superpower, the main Islamic superpower, which was the Ottoman Empire, we were so much away from that process which other nations in Europe were going through. That's the reason we missed the train. डायरेक्टर अजरा नहीर सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डॉक्टर मुकद्दस रहमान का कहना था कि रिसर्च का फरोग वक्त की जरूरत है और सुपीरियर की बुनियाद रखने वालों के ख्वाब की ताबीर भी। It is about time that our consistent innovation would help in opening new doors for problem solving. ICMR has now become a platform where we have shown the world a new Pakistan which envisions a culture of excellence in education. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च के इब्तदाई मरले के बाद दुनिया भर के रिसर्च स्कॉलर्स सिम्पोजियम और वर्कशॉप समेत इंटरनेशनल वीक के दीगर प्रोग्राम्स में भी शिरकत करेंगे। कैमरामैन वसीम नसार के साथ सादिया खान, लाहौर। दूसरी जानिब आपको बताएं, वजारत इंसानी हुकूक और गैर सरकारी तंजीम गोद के ज़ेरे एहतमाम 2 रोज़ा जिप्सी मेले का आगाज़ हो गया। सूबाई वज़ीर इंसानी हुकूक और अक़लियती उमूर एजाज आलम ने मेले का इफ्तिताह किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाबी कॉम्प्लेक्स मिस्टर पार्क में मुनक़दा जिप्सी मेले में झुग्गियों के रहायशी खाना बदोश अफराद की जानब से मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए थे, जिसमें जिप्सी अफराद की सकाफत की तर्जमानी करती मुख्तलिफ अशिया रखी गई थी। मेहमान खसूसी सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक व अक़लियती अमूर एजाज आलम का कहना था कि ऐसे मेलों का इनेकाद खुश आइन है। छोटी छोटी खुशियों को लेकर आगे चल रहे हैं और मैं समझता हूँ ये माशरे में भी और अल्लाह ताला की नज़र में भी आपका ये काम बड़ी पसंद की निगाह से देखा जाएगा। मेले में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड आर्ट के डायरेक्टर जनरल सुगरा सदफ भी शरीक